ہم آپ کو PATF کمپٹیشن یوٹیوب چینل پر خوشامدید کہتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کمپٹیشنز ٹی وی، اور ایک دفعہ پھر آپ کا ہوسٹ حافظ محمد عمران آپ سے مخاطب ہے۔ آج ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی یہ ویڈیو کل پاکستان مقابلہ حسن نعت کے فائنل کے حوالے سے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ فائنل کا رزلٹ شیئر کریں گے اور پوزیشن ہولڈرز آپ کو بتائیں گے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں۔ اور مجھے اس ویڈیو میں ساتھ حاصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان۔ مجھے کہتے ہیں AR ناصر۔ تو بہت شکریہ جی عمران صاحب، آپ نے حسب روایت مجھے اس ویڈیو میں مدعو کیا، اور آج پھر ہم ایک دفعہ خوبصورت ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بالکل جی، ویڈیو خوبصورت تو یقیناً ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق جس مقصد سے ہے، جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہ ایک عظیم مقصد ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فروغ نعت ہمارا ایک مشن ہے جس کو لے کر کے ہم 2019 سے چل رہے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے خود بھی سیکھی، اور ہمارے جو سننے والے ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا، اور جو بھی ہمارے ساتھ ججز شامل ہوئے اس خوبصورت بزم میں، انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور نہ صرف اپنی گونا گو مصروفیات سے وقت نکال کے شرکاء کی رہنمائی فرمائی، بلکہ بہت سے مقامات پر ہماری بھی رہنمائی فرمائی۔ اس لیے ہم اپنے ججز کے بھی مشکور ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، جنہوں نے اس مقابلے کو کامیاب بنایا، اور جو ہمارے اس مقصد کو لے کے چل رہے ہیں، اس میں تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان کے بھی تہہ دل سے مشکور ہیں۔ تو باتیں چلتی رہیں گی، ساتھ ساتھ ہم باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں ویڈیو کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کریں گے مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان،
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان ماشاء اللہ، جزاک اللہ احسن الجزا. بہت خوب، انتہائی احسن طریقے سے تلاوت قرآن مجید الفرقان حمید فرما رہے تھے مفتی محمد رمضان صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے سود و گداس میں برکتیں عطا فرمائے، آمین. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گی ہمرا علی. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. محمد مصطفیٰ کے باغ کے
सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। जो बिन पानी के खिल जाते हैं, मुरझाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अहसनल जज़ा। बहुत खूब, इंतहाई खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज़। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें और रहमतें अता फ़रमाए, आमीन। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात मुकाबला के हवाले से हो जाए तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारा ये सिलसिला 2019 से शुरू हुआ और इब्तिदा में हमने सिर्फ व्हाट्सएप पर मुकाबला मुनाकिद करवाया। उसके बाद इसको हम यूट्यूब पे लेके आए और वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद इस्लाहात की गई, जिनसे हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिला और आप लोगों ने भी यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। तो हम सर से जानते हैं कि इस सफ़र को कैसा देखते हैं, जो कि तकरीबन आज से 5 साल पहले शुरू हुआ और अब तक जारी है और इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगा। तो इस सफ़र में आने वाली मुश्किलात या मसाइल टीम के हवाले से या शुरका के पढ़ने की अगर बात करें तो उसके हवाले से किस किस तरह के मसाइल का सामना रहा, या कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम बारहा दोहराते हैं लेकिन अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी उस सिलसिले में हम नहीं हासिल कर सके। जी इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। असल में मामला कुछ यूँ हैं कि सबसे बड़ा जो इशू है ना, जिस पे बार बार कहना पड़ता है, ये जो हमारे शुरका हैं ख़ास तौर पे, वो हमारी वीडियो को पूरा नहीं देखते, रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं देखते। जब फिर ऑडियो भेजते हैं तो वो रिजेक्ट कर दी जाती है। एक तो ये इशू है, वो हम बार बार कहते रहते हैं कि वीडियो को पूरा देखा करें, रूल्स और रेगुलेशन को ख़ास तौर पे 2-3 दफ़ा सुन लिया करें ताकि असबर हो जाएं, और जब भी आपने रिकॉर्डिंग भेजनी है उससे पहले एक दफ़ा कोशिश किया करें कि रूल देख लें, सुन लें। और इस चीज़ को ना लेके इंतज़ार करते रहा करें कि आखिरी दिन ही और आखिरी टाइम में ही हमने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजनी। ये बड़ा मसला होता है हमारे यहाँ कि हमने अगर 11:30 बजे का टाइम दिया है तो 11 बजे के बाद 10 लोग ऑडियो सेंड कर देंगे। तो इस तरह के जो मामलात हैं का सामना होता है। इसके अलावा चूँकि आप सब जानते हैं कि इसमें हम कैश प्राइज़ देते हैं, तो कैश प्राइज़ के हवाले से भी कुछ मुश्किलात इस दफ़ा जो सामना करना पड़ रहा है फ़िलहाल। तो लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये उसका काम है, ये हो ही जाना है। मुझे यकीन होता है हर दफ़ा, और इस दफ़ा भी मुझे यकीन है ये हो ही जाना है। तो इस सिलसिले में भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई इस सिलसिले में तावन करना चाहे, नात कंपटीशन के हवाले से अपना हदिया पेश करना चाहे, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। तो यही चीज़ें होती हैं, इसके अलावा तो कोई इशू नहीं होता। बाकी ज़ाहिर है जब रूल रेगुलेशन नहीं सुनेंगे तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसी जगह पर बैठ कर रिकॉर्डिंग कर दी जाती है जहाँ शोर होता है, और कई दफ़ा ऐसी रिकॉर्डिंग भी हमें मौसूल हुई हैं जिसमें जो घर वाले लोग हैं उनकी आवाज़ें ज़्यादा हैं, और जिसने नात सुनानी है, जिसकी ऑडियो अपनी है, उसकी आवाज़ थोड़ी कम है। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं।
जो कि मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल तो हम बार बार कहते रहते हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, लेकिन हमारे शुरका जो हैं वो इसका ख्याल नहीं रख रहे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, टीम मिल के काम करती है, डिस्कशन से सारे मामला तय पाते हैं, और हमारे मुंसफीन ख़ास तौर पे टाइम निकालते हैं और हर ऑडियो को बड़े गौर से सुनते हैं, और कई दफ़ा तो कई बार सुनने के बाद उस पर तबसरा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ ये हमारा जो मुकाबला है ये मकबूल होता जा रहा है। अभी हमने इसकी वीडियो अपलोड करनी है, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब रिज़ल्ट की वीडियो अपलोड की जाती है उसके चंद दिन बाद ही कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि आपका मुकाबला कब होना है, कब से शुरू होगा। तो इस तरह की कॉल्स भी आई हैं कि सर मुझे पता ही नहीं चला तो मुकाबला हो गया। मैंने कहा जी अब तो आप ज़ाहिर है नेक्स्ट ईयर इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, अब तो हम मुकाबला कंप्लीट कर चुके हैं। तो बहरहाल इस तरह के मामलात हैं जिनका सामना रहता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ज़्यादातर बड़ा खुश हूँ कि अल्लाह ताला हमसे कोई अच्छा काम ले रहा है, और इसके साथ साथ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी टीम को भी, साथ मुंसफीन को भी, जिनकी मेहनत से ये मुकाबला दिन ब दिन मैं समझता हूँ कि तरक्की कर रहा है। जी बिल्कुल सर, और इसकी वजह ये है, इसका यूँ कह लें कि सबूत ये है कि हमेशा हमें नई आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। शुरू में 1-2 साल ऐसा हुआ कि पुरानी ही आवाज़ें थीं और नई आवाज़ें बहुत कम सुनने को मिली, लेकिन गुज़श्ता 2-3 साल से ये हो रहा है कि हमेशा नए लोग आते हैं और नई आवाज़ें होती हैं, और कुछ अच्छी आवाज़ें भी होती हैं, लेकिन ख्वाहिश ये है कि अच्छी आवाज़ों में इजाफ़ा होना चाहिए। मज़ीद जो अच्छा पढ़ने वाले हैं उन तक आप लोग हमारा मैसेज पहुंचाया करें, और वो भी जो हमारे मुंसिफीन हैं उनसे इस्तिफ़ादा करें और हम उनकी अच्छी आवाज़ों से महसूस हो सकें। इसके अलावा आप लोगों से ये भी कहना है, जहां सर ने बात की मुकाबला के हवाले से कि इसमें हमें ताउन दरकार रहता है, इसी तरह से हमारे जो कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से, जैसे हमारा ऑडियो बुक्स की रिकॉर्डिंग का एक सिलसिला है जो कि दर्स निज़ामी के तलबा और तालिबात के लिए हमने सिलसिला शुरू किया है। तो उस सिलसिले में भी आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, और उनके लिए फिर रीडर्स और एडिटर्स उनको लेके चलना और बाकी मामलात को मैनेज करना, तो ये मेरे ख्याल में आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं और समझते हैं। तो उस सिलसिले में भी कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। और इसके अलावा मुकाबले के हवाले से तो आपसे बात कर ली गई है, क्योंकि जो कोशिश आप करेंगे उसका सिला हम आपको नहीं दे सकते किसी सूरत भी, वो तो आपको उसी ज़ात ने देना है जिसके लिए आप कर रहे हैं। जी इमरान साहब बहुत शुक्रिया। और बातें तो बहुत सी चलती रहेंगी, और वो कहते हैं बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इससे पहले कि बहुत दूर चली जाए हम अपनी वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, और जो हमारे मुंसफीन हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपनी गुनगुन मसरूफियत से टाइम निकाला और इस मुकाबले को खूबसूरत बनाया, जिनमें शामिल हैं जनाब ग़ुलाम अब्बास साकिब साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इसके अलावा जनाब मोहम्मद कामरान साहब वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारी फ़ीमेल मुंसिफ मुहतरमा रिदा फ़ारूक साहिबा वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो ये गुलदस्ता मुंसफीन का हमारे साथ है, और जब तक ये हमारे साथ है मैं समझता हूँ कि हम मुकाबले इसी तरह के कराते रहेंगे और इसमें हमें कामयाबियाँ होती रहेंगी। मैं अपनी तरफ से अपनी टीम की जानिब से तहे दिल से इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये अपनी हुनर मसरूफियत से टाइम निकालते हैं और इस मुकाबले को 4 चांद लगा देते हैं। बिल्कुल जी, हम अपने जजेस का शुक्रिया भी अदा करते हैं और इनके लिए दुआगो भी हैं। अल्लाह ताला इनके मामलात में
आसानी फरमाए और बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन। और मेरे ख़्याल से अब इंतज़ार ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे ने मुकाबला किया होता है या जिसने कोई इम्तिहान दिया होता है, उसको फिर बड़ी बेताबी होती है कि वो अपना नतीजा जान सके, उसने कैसा परफॉर्म किया और उसका रिवॉर्ड उसको क्या मिला। तो मेरे ख़्याल से हम ये इंतज़ार अब ख़त्म करते हैं और रिज़ल्ट की जानिब बढ़ते हैं। इस दफ़ा रिज़ल्ट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, ख़ास तौर पे हमने दावत दी है हमारी टीम का एक अहम हिस्सा, जो कि ज़्यादातर पस मंज़र में रह के काम करते हैं। उनके मशवरे हमारे साथ शामिल रहते हैं और बड़े मुफीद और कीमती मशवरे वो हमें देते हैं। तो इस बार सोचा कि उनकी आवाज़ भी आपको सुनाई जाए। तो मेरी मुराद हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब से है, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि वो रिज़ल्ट हमें सुनाएं और बताएं कि लोगों ने, हमारे जो शुरका हैं, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया और उनको जजेस ने क्या रिवॉर्ड दिया। क्योंकि हकीकतन इनको जो रिवार्ड मिलना है वो तो उसी बारगाह से मिलना है जिसमें इन्होंने सनाखानी की है। ये तो बस दुनियावी कवायद व ज़वाबित हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको पूरा करना है और मुकाबले को आगे बढ़ाना है। क्योंकि मुकाबले में ज़ाहिर है किसी की कोई पोजीशन आएगी, किसी की कोई पोजीशन आएगी, लेकिन अगर हकीकत में बात करें तो सभी अव्वल हैं। क्योंकि यहाँ तक पहुँचना और ख़ास तौर पे नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ना, ये अपने में एक बहुत बड़ी सआदत है। तो मैं गुजारिश करूँगा हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब से कि वो शुरका को उनके नताइज से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर व आफियत होंगे। तो जनाब, फाइनल राउंड का रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है, मुकाबला हुस्न नात 2023 का। मुकाबले के रिज़ल्ट की तरफ जाने से पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा PATF की पूरी टीम को, कि जिनकी शब रोज़ की मेहनत से इस मुकाबले का इनेकाद हुआ करता है हर साल, और उन शुरका को भी जो पूरी तैयारी और मेहनत के साथ, अदब एहतराम के साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए इस मुकाबला में शिरकत किया करते हैं। और वो सब लोग भी मुबारकबाद के यकीनन मुस्तहिक हैं जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आका अलैहिस्सलाम की मदह सराई को पूरी तवज्जो के साथ सुना करते हैं। तो जनाब, अल्लाह ताला का फजल व एहसान है आप सब पर कि आप अपने अपने अंदाज में इस महफिल नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल होते हैं। तो बिला ताख़ीर ज़्यादा इंतज़ार करवाए बगैर, क्योंकि यकीनन जो शुरका हैं वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करते हैं अपने नताइज के हवाले से, वो जान सकें कि जजेस ने जो उनकी रहनुमाई की और उनको जो नंबर मिले हैं वो क्या हैं। तो मैं बताता चलूं, मुकाबला हुस्न नात 2023 के लिए 55 लोगों ने ऑडिशन भेजा, जिनमें से 42 लोग फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हुए। 36 लोगों ने अपनी नात भेजी और 14 लोग फाइनल राउंड के लिए मुंतखब हुए। फाइनल राउंड का रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। 14 में से 13 लोगों ने अपनी हाजिरी पेश की और 9 अफराद ऐसे रहे जिनको जजेस ने मार्क्स दिए, और रहनुमाई तो यकीनन सभी शुरका की, ना सिर्फ शुरका की बल्कि हम सब की रहनुमाई बड़े अच्छे अंदाज में की। तो मेल और फीमेल पार्टिसिपेंट्स दोनों हमारे पास मौजूद हैं, इनकी लिस्टें। 5 अफराद मेल लिस्ट में हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले मेल पार्टिसिपेंट्स के मुतालिक जानते हैं कि उनमें कौन कौन शामिल है और उन्होंने क्या क्या नंबर हासिल किए हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो
لسٹ میں نام ہے وہ ہے عرفان محمود، ولدیت ان کی محمود اقبال ہے، گجر خان سے ان کا تعلق ہے اور نمبر ان کے ہیں 61۔ محمد اویس گوجرا سے ان کا تعلق، غلام حسین ان کی ولدیت اور نمبر ان کے ہیں 69۔ اس کے بعد اب جو خوش نصیب ہیں وہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ نمبروں پر موجود ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ تھرڈ نمبر پہ، تھرڈ پوزیشن پہ کون ہے۔ تو تھرڈ نمبر پہ ہیں علی احمد، محمد شفیع ان کی ولدیت، سبی سے ان کا تعلق، 71.5 مارکس انہوں نے حاصل کیے ہیں اور اس کے ساتھ تیسری پوزیشن پر آئے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس جو نام ہے زبیر احمد کا ہے، محمد ریاض ان کی ولدیت، گجرانوالہ سے ان کا تعلق، 80.25 مارکس انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ آخر میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب ہیں طیب رحمان، رفاقت علی ان کی ولدیت اور ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ جو انہوں نے مارکس حاصل کیے ہیں وہ ہیں 83.5۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو۔ اور اس کے بعد فیمیل پارٹیسپینٹس کی جانب آتے ہیں۔ 4 خواتین کی لسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، تو ان میں سے سب سے پہلا جو نام ہے ثنا پرویز ہے، محمد پرویز ان کی ولدیت اور ان کا تعلق ہے ایبٹ آباد سے، اور 47 مارکس انہوں نے حاصل کیے۔ اور اس کے بعد تھرڈ پوزیشن جو حاصل کی ہے ان خوش نصیب کا نام ہے سمن افتخار، محمد افتخار ان کی ولدیت، تعلق ان کا گجرانوالہ سے ہے اور ان کے مارکس ہیں 50۔ سیکنڈ پوزیشن پر آنے والی خوش نصیب ہیں علما راؤف اور ان کی ولدیت ہے عبد الرؤف، کراچی سے ان کا تعلق ہے اور ان کے جو مارکس ہیں 61.25۔ ماشاءاللہ، فرسٹ پوزیشن خواتین میں جو حاصل کی ہے وہ حاصل کی ہے سویرا بابو شاہد علی بابو، ان کا تعلق پشاور سے ہے اور مارکس انہوں نے حاصل کیے ہیں 81۔ تو ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً یہ جو مقابلے کا ماحول ہے، مقابلے کا انداز ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن یا کوئی بھی پوزیشن حاصل کرنا ہے، یہ صرف دنیاوی دلچسپیوں کے لیے ہے اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے، ورنہ اصل میں تو مقصد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان، آپ کی ثناخوانی ہے، عظمت و شان کا بیان ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ سب کے علم و عمل میں، ججز کے علم و عمل میں جو بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی کارکردگی کو جانچتے ہیں، اس کے اوپر اپنے ویوز دیتے ہیں اور آپ کو مارکس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے اب چلتے ہیں ہم AR ناصر صاحب کے پاس۔ تو جی، اوور ٹو یو عبد الرحمان ناصر صاحب۔ بہت شکریہ جناب حافظ محمد اکرم صاحب، آپ کا بہت بہت مبارک ہو ان شرکاء کو جنہوں نے پوزیشنز حاصل کی اور جو رہ گئے۔ ویسے تو سبھی اول ہیں جیسے کہ عمران صاحب کہہ چکے ہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، اس بارگاہ میں مدح سرائی کرنا ہی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ جو فارمیلٹیز ہیں کچھ وہ پوری کرنی پڑتی ہیں، اس کے مطابق جو لوگ پوزیشنز ہولڈر ہیں ان تمام کو بہت بہت مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ جی تو عمران صاحب کیا کہتے ہیں وزیر صاحب؟ بالکل جی، مبارکباد کے مستحق ہیں سبھی شرکاء اور خاص طور پہ وہ جنہوں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں، اور باقیوں سے یہی کہنا ہے کہ محنت کریں، کوشش جاری رکھیں اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ مقابلہ میں آپ فاتح بن کر سامنے آئیں اور آپ کی پوزیشن آئے۔ اور اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ
जितने भी हमारे मुकाबला जात अपलोडेड हैं, एक एक वीडियो के साथ हमारे मुनसिफीन ने बड़े अच्छे अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया है और अपने व्यूज़ दिए हैं, उनको आप ज़रूर सुनें और उनसे सीखें, इस्तिफ़ादा करें, ताकि आइंदा मुकाबले में आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। जाने से पहले एक ज़रूरी बात आप लोगों को बतानी है कि जिन लोगों ने पोजीशंस हासिल की हैं वो शहजाद साहब से रब्ता करें और उनको अपना अकाउंट नंबर और तमाम तर तफसीलात सेंड कर दें ताकि उनका इनाम उन तक पहुंचाया जा सके। और शहजाद साहब को आप जानते हैं, जिस नंबर पे आपने अपनी तमाम तर परफॉर्मेंसेस सेंड की हैं वही उनका नंबर है और उसी पे आपने उनसे रब्ता करके अपने अकाउंट की तफसीलात उनको भेजनी है ताकि बर वक्त आपका इनाम आप तक पहुंचाया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ ही आज की वीडियो जो है वो ख़त्म करते हैं। आइंदा किसी वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए इजाज़त। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में रखिए याद, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। PATF, leading towards independence.